Yeah. So in the previous lecture, we have discussed about the cloud concept. Okay. Under the cloud concept, we have learned about the what is cloud, creation of virtual machine, VM. Next thing, what is services and type of cloud. Okay. So this is the basic we have done in the previous class. So we will start the next important topic, that is the cloud services and architecture. Okay. So Azure services are divided into the two parts. Okay. Services divided into two parts. Two parts. Okay. So Azure cloud services. Suppose this is the basis on your physical infrastructure. So we can call it as a Azure architectural component. Okay. And next, this is the first one, and this is the second part is the core resources. Okay. Azure core resource. Okay. So what exactly come under these services? We have checked here. First is the region and availability zone. It is zone. Okay. Next is the subscription, and RG, that is the resource group. Okay. So, and in the Azure core services, we have some compute services, compute, network, storage, and database. Okay. Understand? Azure services divided into the two parts. Okay. On the basis of that particular service and infrastructure. Okay. Particular infrast on the basis of the infrastructure, some services, that is the some it's a actually this is the depend on the your infrastructure. Okay, physical infrastructure, that is the reason availability zone, subscription, and resource group. Okay, and the core services, under the core services, we have a compute, networking related services like a virtual network, subnet, firewall, like that. Okay, and the storage, what kind of the storage are required for the
store your structure and unstructured data. That is the storage services and database means you are like that SQL and MySQL, like that particular database. Okay, that is particular services provided by the Microsoft. So we first check, तो हम अब क्या करेंगे कि पहली वाली जो सर्विस है Azure आर्किटेक्चर कंपोनेंट. ओके, कंपोनेंट. इसमें क्या होता है कि Azure is an operating system, correct, which manage a data center of Microsoft, correct. एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कौन करता है? डेटा सेंटर, राइट. डेटा सेंटर में हम वहां पे वो इंस्टॉल होती है एक्चुअली फिजिकली. और वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए. अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्या आता है? रीजन. ओके, रीजन मतलब क्या होता है? दैट इज योर जियोग्राफिकल एरिया. ओके, in the which geographical area where is that installed your physical data center. Okay, दूसरा कंसेप्ट रीजन में होता है कि रीजन पेयर्स. ओके, सेकंड वन आता है अवेलेबिलिटी जोन. अवेलेबिलिटी जोन. थर्ड वन आता है रिसोर्सेस, एजूर रिसोर्स. फोर्थ वन है आरजी, मीन्स रिसोर्स ग्रुप. उसके बाद आता है एआरएम, एजूर रिसोर्स मैनेजर. रिसोर्स ग्रुप को जो मैनेज करता है तो जो रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं. उसके बाद में सब्सक्रिप्शन और मैनेजमेंट ग्रुप. मैनेजमेंट ग्रुप. ओके, दिस is the Azure architecture component. Okay, so region pair, availability zone, Azure resources, रिसोर्स ग्रुप मैनेजर, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन और मैनेजमेंट ग्रुप. अभी देखो, फर्स्ट हम क्या देखेंगे? रीजन और रीजन पेयर्स. अब रीजन क्या होता है? अभी जैसे मैं दिखाता हूँ. जो रीजन एंड zones. Okay, so you can check here. Azure region and availability zone are fundamental concept in Azure global infrastructure. Region are geographical area containing the multiple data center while the availability zone. ये तो मैं नहीं बता रहा, मैं एक बताता हूँ आपको कि मैप. Azure region list. You can check here. Region. ऑस्ट्रेलिया रीजन, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया साउथ, इस टाइप के रीजन होते हैं. और उसमें कहाँ पे पेयर्ड रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको. ये फिजिकल लोकेशन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया सेंटर में फिजिकल लोकेशन कैनबेरा में है. ओके, और उसका जियोग्राफी एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया है. मतलब ये पर्टिकुलर किसी सिटी में ये डेटा सेंटर बना हुआ है. ओके, इस टाइप के एजूर के
लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अभी Azure region availability shown number। ओके, कितना है? Azure has over 60 announced the region। ओके, 60 रीजन। देखो, 60 रीजन उन्होंने अभी तक अनाउंस किए हैं। इस टाइप ये देख सकते हो, देखो, अवेलेबिलिटी रीजन एंड जोन, AWS, Azure एंड GCP वर्ल्ड वाइड। इस टाइप, देखो ये पूरा वर्ल्ड वाइड यहाँ पे उनके डेटा सेंटर है, दिख रहा है ना? GCP के कितने हैं? 24 रीजन विथ 73 टोटल जोन्स। वेस्ट यूरोप, वे अलग अलग रीजन, मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया, राइट? इतना आपको समझ में आ गया, राइट? देखो 60 प्लस रीजन है। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 140 प्लस कंट्रीज में। रीजन में क्या होता है, मैं सेपरेट लेता हूँ। रीजन में क्या होता है कि रीजन आर मेड अप ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर, ओके, इंक्लूडिंग वन और मोर डेटा सेंटर। ओके, उसके बाद क्या होता है कि रीजन क्या प्रोवाइड करता है अपने को? फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी टू रिड्यूस द कस्टमर लेटेंसी। हमने जितने सारे रीजन में हमारे अगर डेटा सेंटर रहेंगे तो हमारा डाउन टाइम कम होगा, ओके, लेटेंसी भी कम होगी, हम आपस में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल, मतलब कस्टमर को कौन सी भी सर्विस क्या कर पाएंगे कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल कर पाएंगे, अगर मैक्सिमम हमारे पास बैकअप रहा तो। ओके, अलग अलग रीजन में अगर अलग अलग डेटा सेंटर रहेंगे तो ये क्या होता है कि प्रिजर्व डेटा रेसिडेंसी विद द कॉम्प्रिहेंसिव एंड compliance ऑफर, ओके, एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्केल टू रिड्यूस द कस्टमर लेटेंसी, करेक्ट? सो एक डेटा सेंटर, फॉर एग्जांपल, क्या होता है कि सिंपल पॉइंट एक याद रखना, वन रीजन, वन रीजन इक्वल टू कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ जोन्स, zones, it may be one or more, right? और अब ये रीजन पेयर क्या होता है? रीजन पेयरिंग, पेयर्स, फॉर एग्जांपल, अभी ये मेरा जियोग्राफिकल एरिया है, जियो, ओके, और ये मेरा रीजन है, ये है मेरा इंडिया, ओके, ओके, ये रीजन है इंडिया, इंडिया के अंदर मेरा एक डेटा सेंटर है दिल्ली में, एक ही है समझो, ओके, और यहाँ पे चंडीगढ़ में, रीजन एक ही है, ओके, इंडिया, और दूसरा रीजन, दूसरे सेम रीजन है, ये रीजन, लेकिन इसका ये जोन वन है। जोन वन मतलब ये दिल्ली, दिल्ली में मैंने क्या किया, एक डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ में ये जोन टू दूसरा डेटा सेंटर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कुछ नेचुरल डिजास्टर अगर हो गया,
ये पूरा का पूरा रीजन, मतलब यहाँ का पूरा रीजन ही डाउन हो गया। तो यहाँ से जो सर्विसेज चल रही है पूरी की पूरी डाउन हो जाएंगी, सर्विसेज डाउन। So in this case, we need to the pair that particular region with nearest region. इनका अप्रोक्सीमेटली 300 माइल्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 410 या 420 किलोमीटर के बीच में या इसके रेंज में होना चाहिए। ओके, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ का जो डेटा है, ये डेटा हम एग्जैक्टली एज इट इज रेप्लिकेट करते हैं जोन 1 से जोन 2। ओके, एग्जैक्टली। तो अगर यहाँ पे कोई आउटेज आता है, यहाँ पे कंप्लीट जोन डाउन हो, मतलब रीजन डाउन हो गया, तो वो पूरी की पूरी यहाँ की सर्विसेज यहाँ से आप होनी चाहिए, बैकअप सर्विस। क्लियर? रीजन पेयर्स। हेलो। क्या होता है कि फॉर द अवेलेबिलिटी इन द वर्स्ट केस सिनारियो, ओके, क्या होता है कि कंप्लीट रीजन माइट बी आउटेज। कंप्लीट रीजन, मैंने क्या बोला कि कंप्लीट रीजन अगर डाउन हो गया, मतलब माइट बी ड्यू टू द नेचुरल प्रॉब्लम और सम डिजास्टर हैपन, ओके, फ्लड, पावर आउटेज। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, a region pairs is done, okay, where the Microsoft create a pair zone to parent, sorry, present data during the such a disaster। ओके, ये अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही इनके इसमें रीजन में पेयरिंग होती है। आपने को सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज द रीजन पेयरिंग। समझ रहे हो? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसमें कि बोथ रीजन, ये मतलब ये वाला और ये वाला शुड बी इन द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब हमने इंडिया ले लिया, करेक्ट, इंडिया में है, उसके बाद एटलीस्ट 300 माइल्स, मतलब 300 माइल्स के बीच में रहना चाहिए, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द रीजन पेयर। 300 माइल्स मतलब 400, 400, 410, 420 किलोमीटर, ओके। और इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिप्लिकेट फॉर द सेम सर्विसेज। ओके, इसमें जो जो सर्विसेज होती है वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट यहाँ पे होती है फॉर द डिजास्टर रिकवरी, ओके, डीआर, डिजास्टर रिकवरी। तो अगर यहाँ पे कंप्लीट डाउन हो जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी डेटा बैकअप है, यहाँ से जो सर्विस चल रही थी वो ऑटोमेटिकली ये सर्विसेज यहाँ से जोन 2 से चलने वाली। ओके, इसलिए हम रीजन पेयरिंग करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पेयरिंग फिक्स होता है, समझो। पेयरिंग क्या होता है? फिक्स होता है। और ये डिफाइन कौन करता है? कौन करता है? ये पेयरिंग जो होता है ना, फिक्स्ड, किसमें करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड और डिफाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर? समझ रहे हो ना? हेलो। कोई बोल ही नहीं रहा भाई। Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, क्लियर sir. ना? Yes, yes. हाँ। तो अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शन, जैसे अपन जोन जोन पे आएंगे, अभी जोन पे आएंगे, अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑप्शन हमारे पास कैसे कैसे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन करके दिया। अवेलेबिलिटी ऑप्शन क्या होता है? दैट इज द फैक्टर, ओके, विच डिसाइड द हाउ मच टाइम इज आवर एप्लीकेशन अप एंड रनिंग। Sir, before going to the next topic, I just हम्म। want to understand your regions. We are talking about the region and region pairing. So हम्म। this is all about decided by Microsoft. There is करेक्ट। no user intervene here. नो Is नो it? नो, मैं Then पहले ही क्या बोला कि आर्किटेक्चर में आपने याद नहीं दिया क्या? आर्किटेक्चर जो है एजूर सर्विसेज जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज द एजूर आर्किटेक्चरल कंपाउंड,
Azure आर्किटेक्चरल कंपोनेंट जो है ये बेस्ड ऑन योर फिजिकल इंफ्रा, करेक्ट। और ये तुम्हारी Yeah. सर्विसेज है। ये सर्विसेज डिसाइड करती है कि कौन क्या काम इसमें काम करने वाला है। अगर आपने कंप्यूटर सर्विसेज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें क्या करेगा और कस्टमर क्या करेगा, ओके। लेकिन बाकी का डेटा सेंटर हो गया, पूरा का पूरा डेटा सेंटर रीजन पेयरिंग, ये पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का काम है, ओके। फॉर दी बेटर बेटर टू प्रोवाइड द बेटर सर्विस टू द कस्टमर, ओके। हम जैसे हम कोई लिंक बनाते, लिंक एक वन वे थोड़ी बनाते, बाय डायरेक्शनल बनाते, राइट। Mhm. टू पाथ, थ्री पाथ, फॉर दी मतलब अवेलेबिलिटी, मतलब एक पाथ डाउन हो गया तो दूसरे पाथ से वो चलना चाहिए, करेक्ट ना। Correct. हम्म। तो हार्डवेयर वही मैनेज करेगा, तो हम नहीं करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट, ओके। यू नीड टू द नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, इट्स अ वेरी बेसिक। that particular service is divided into two part. One means it's based on your infra and your core services, okay. Infra is all managed by Microsoft, and core services like that your virtual machines, your networking, logical networking, database, storage, like that. Okay. So next option is the availability option. What is the availability? Availability का मतलब क्या होता है कि ऐसा फैक्टर जहां पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी सर्विसेज कितने टाइम, ओके, कितने टाइम तक अप है और कितने टाइम तक डाउन। अगर मेरी सर्विस 100% अगर अप है तो इसका मतलब क्या है, ऑलवेज वर्किंग, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, नो डाउन टाइम, आई एम करेक्ट। 100% अप है मतलब नो डाउन टाइम। लेकिन अभी तक हमने मैन्युअली, ऐसा कभी होता है इंसान ने कुछ बनाया 100% करेक्ट होता है करके, नो, राइट। हम 99.99% तक जा सकते हैं, 100% नहीं जाते, करेक्ट। वो मैं बता रहा हूं। अभी नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन हाउ वी कैन डिफाइन द अवेलेबिलिटी, बोलो। अगर तुम्हारी एक लिंक, फॉर एग्जांपल लिंक डाउन है या अप है, तो उसका क्या होता है। अगर मेरी एक सर्विस डाउन होगी, फॉर एग्जांपल मेरा एक बीटीएस डाउन हो गया, बीटीएस डाउन हो गया, दैट इज द प्रीमियम कस्टमर। सो मुझे अब करना है इसको विद इन 15 मिनट। सो इस 15 मिनट को क्या बोलेंगे आप, Downtime. करेक्ट, डाउन टाइम। बट उसको एक टेक्निकल वर्ड क्या है, एसएलए, राइट। Yeah. Yes. सर्विस, Level agreement हाँ, ये किसकी किसके साथ होता है, between this two customer. You can say user और इसके बीच service हाँ provider. हाँ, सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर, ओके। तो सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर ने बोला होता है भाई ये सर्विस हम देंगे आपको, ये सर्विस का इतना इतना डाउन टाइम है। अगर 15 मिनट में आपकी सर्विस अगर आप नहीं आती है, इतना टाइम हमको दे दो, 15 मिनट हमारा टाइम, इसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर 15 मिनट के बाद जो टाइम लगेगा उसकी पेनल्टी आईएसपी को लगेगी, कस्टमर कस्टमर लगाएगा, ओके। क्लियर ना, फास्ट हो रहा है क्या भाई, Yes, that's agreed. एकदम स्लो ले रहा हूँ ना, फास्ट थोड़ी। Yes. हाँ। तो अभी नीचे का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक और बहुत एक पूरे के पूरे पॉइंट ले रहा हूं, ओके। इसमें क्या हो रहा है कि 99.9%, ओके। और दूसरा एग्जांपल है, अगर 99.99%, ये जब तुम एग्जाम दोगे ना AZ900 की, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और दूसरा आता है डिजास्टर रिकवरी, ओके। अभी 99.9% में क्या आता है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल एक वीएम आपने नॉर्मल बना दिया। बनाने के बाद ये क्या होता है कि सिंगल वीएम है, राइट।
सिंगल वीएम बना दिया। अब इसमें तुमने अवेलेबिलिटी जोन या सेट ये वर्ड पता नहीं आपको, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सिंगल वीएम। सिंगल वीएम, ओके। ऑप्शन वहां पे आते हैं, आपने देखा था वहां पे अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हमने क्या किया था, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व विद इन दैट, ओके। तो इसमें सिंगल वीएम आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर ये वीएम डाउन होता है तो आपका अवेलेबिलिटी ऑप्शन में अगर कितना आता है कि 99.9%, ओके। अगर तुम्हारे दो वीएम, ये वीएम वन और दूसरा वीएम, मतलब ये तुम्हारा एक ही रीजन में और एक ही डेटा सेंटर में रहेगा, लेकिन मैंने क्या किए कि दो वीएम बना दिए। ये बनाया मैंने जोन वन में और ये बनाया मैंने जोन टू में, ओके। और रीजन सेम है। एक ही रीजन में दो अलग अलग डेटा सेंटर में मैंने दो वर्चुअल मशीन बना दिए, वीएम वन और वीएम टू। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर वीएम वन डाउन हो जाएगा तो वीएम टू से चलेगा, और वीएम टू डाउन हो जाएगा तो वीएम वन से चलेगा। तो ये डिपेंड हो गया कि क्या हो गया कि ईच जोन, क्या हो गया, ईच जोन हैव इंडिपेंडेंट, ईच जोन हैव इंडिपेंडेंट पावर बैकअप एंड फिजिकल सेपरेशन, ओके। तो इसमें क्या हो गया, इसका अलग है, मतलब इसका पावर बैकअप अलग है, इसका अगर दोनों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सेपरेट है। अगर यहाँ पे कोई डाउन होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, ये जोन डिफरेंट जोन है। फॉर एग्जांपल ए रीजन है इंडिया, और यहाँ पे मैंने बॉम्बे में बनाया, मुंबई, और एक पुणे में बनाया डेटा सेंटर। तो ऐसा तो नहीं होगा नहीं, मुंबई में भी बाढ़ आ जाएगी और पुणे में भी बाढ़ आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। अगर ऐसा भी हो गया, अगर पूरा का पूरा जोन डाउन हो गया, तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो दैट इज द रीजन पे, करेक्ट। अगर सिंपल उसके नीचे नीचे जा रहे हैं हम, समझ समझ लो। अभी जोन के बीच में अगर इसके यहाँ पर एक वीएम है, यहाँ पे एक सर्विस चल रही है, यहाँ पे सर्विस, ये अगर डाउन हो जाती है तो यहाँ से आप हो जाएगा, और ये डाउन हो जाएगा तो यहाँ से आप हो जाएगा, ओके। इतना समझ लो, दैट इज अंडर द अवेलेबिलिटी जोन, ओके। अभी डिजास्टर रिकवरी हमने अभी बात की थी। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा वीएम है और यहाँ पे एक वीएम है, दैट इज टू एंड वन। मैं एग्जांपल के लिए रहा हूँ, ओके, वीएम मल्टीपल हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए रहा हूँ समझने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिंगल रीजन। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा रीजन वन है, रीजन वन, और ये मेरा रीजन टू है, रीजन वन और रीजन टू, मतलब ये दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया हो गया, करेक्ट। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, अगर इंडिया में ये पूरा का पूरा रीजन डाउन हो गया, तो ये रीजन दूसरे दूसरे देश से, फॉर एग्जांपल नेपाल, बांग्ला, कहीं पे यहाँ से चलेगा, ओके। तो ये होता है कि रीजनल प्रोटेक्शन होता है, रीजनल प्रोटेक्शन विथ डेटा रिडंडेंसी एंड बाउंड्रीज, ओके। दैट इज विद द हेल्प ऑफ, कैसे होगा डिजास्टर रिकवरी, विद द हेल्प ऑफ रीजन पेयरिंग, रीजन पेयरिंग, अंडरस्टैंड। हेलो, क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जोन, अवेलेबिलिटी जोन। जोन क्या होता है, वन जोन ट्रीटेड एज अ वन डेटा सेंटर, वन जोन इक्वल टू वन डेटा सेंटर, ये याद रखना। समझ में आ रहा है, मल्टीपल जोन लीड्स फॉर द रीजन, ओके। रीजन में मल्टीपल जोन हो सकते हैं, ओके। ईच डेटा सेंटर इज इक्विप्ड विद द इंडिपेंडेंट पावर,
cooling, and networking. Okay, each zone are interconnected via fiber optics network. Clear? अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन। ओके, ये तुम्हारा पॉइंट है। अगर ये मेरा रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और रीजन 3, और ये तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन है। तो इस रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर होंगे, 1 और 3। ओके, 1 और 3 और 3 से भी ज्यादा। ओके, यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे। तो आप अगर इस एक वर्चुअल मशीन बनाते हो, वहां पे पहले रीजन देते हो, और रीजन के बाद में तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन आता है, तो वहां पे आप जोन 1, जोन 2, जोन 3 ऐसा भी दे सकते हो। मतलब तुम्हारा एक सर्विस, मतलब ये वर्चुअल मशीन का बैकअप अलग अलग जोन में रिप्लिकेट होगा। मतलब यहाँ की सर्विस अगर ये डाउन हो गया तो यहाँ से चलेगा, ये डाउन हो गया तो यहाँ से चलेगा। दैट इज द अवेलेबिलिटी जोन। समझ में आ रहा है? जोन मतलब डेटा सेंटर, इतना याद रखना। ओके, अभी सर्विसेज, भी एजुर सर्विसेज बहुत सारी तो आपको पता होगी। ओके, अभी जनरल सर्विसेज में कौन सी आती है? जनरल सर्विसेज, उसके बाद में कंप्यूट, उसके बाद में स्टोरेज, और उसके बाद में नेटवर्किंग। ओके, तो जनरल में तुम्हारा आता है कि मैनेजमेंट ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद तुम्हारा आता है मार्केट प्लेस। हमने देखा था बराबर। मार्केट प्लेस में क्या होता है? तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। करेक्ट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अकाउंट होता है तुम्हारा। ओके, फॉर द बिलिंग सब्सक्रिप्शन। हमने अभी भी आपने क्या किया? सब्सक्रिप्शन ही लिया ना, फ्री टायर या पे एज यू गो। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट रन करने के लिए, अगर आपको कुछ ऑटोमेशन करना है, उसके लिए टेम्पलेट होते हैं। उसके बाद टैग होते हैं। हमने देखा वर्चुअल मशीन जब क्रिएट किया था, तब टैग टैग क्या होता है कि पर्टिकुलर सर्विसेज वी नीड टू डू बाइफरगेट, और कुछ रिपोर्ट निकालना है, तो टैग से हमको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन किस प्रोडक्शन में है, डेवलपमेंट में है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वहां पे हम मेंशन करते हैं। दैट इज द टैग। ओके, एंड रिसोर्स एक्सप्लोरर। ये रिसोर्स एक्सप्लोरर क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल तुमको इंटायर इंटायर जितने वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन में कोई स्क्रिप्ट करना है, फॉर एग्जांपल पैचिंग की इंफॉर्मेशन निकालना है, या पैच करना है, या फिर वहां कोई इंफॉर्मेशन उठाना है, रिपोर्ट निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ सम लैंग्वेज, we have some language for we need to write some code and paste that particular explorer, and you can just run it. Okay, once you run, then you will get the output, desired output. Okay, that is your general services. And compute services में कौन कौन से आते हैं बताओ? कंप्यूट में वीएम आता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्या आता है? तुम्हारी ओएस इमेज आती है। उसके बाद क्या आता है? वीएम स्केल सेट आता है। क्लाउड सर्विसेज आ गई। उसके बाद तुम्हारा होस्ट आ गया। उसके बाद तुम्हारी कुबरनेट सर्विसेज आ गई। ओके, मल्टीपल आती है। स्टोरेज में तुम्हारा क्या आता है? स्टोरेज स्टोरेज अकाउंट आ गया। उसके बाद रिकवरी आ गई। उसके बाद डेटा आ गया। डेटा और डेटा लेक भी बोल सकते हो। स्टोरेज एक्सप्लोरर भी होता है। ओके, डेटा शेयर भी आ गया। ओके, और उसके बाद नेटवर्किंग में क्या आता है? तुम्हारा वर्चुअल नेटवर्क। उसके बाद तुम्हारा एक्सप्रेस रूट। हम देखेंगे, ये जस्ट हम एक्सप्लोर कर रहे कौन कौन सर्विसेज। दैट इज योर पब्लिक आईपी, आईपी एड्रेसिंग। ओके, एनआईसी,
उसके बाद क्या आता है? सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, राइट? कंटेंट सीडीएन प्रोफाइल, रूट टेबल, रूट टेबल, नेटवर्क सिक्योरिटी, दैट इज द एनएसजी ग्रुप। ओके, दैट इज द ये मतलब एक, मतलब हमने क्या किया कि बाइफरगेट कर लिया कि सर्विसेज स्टोरेज में क्या आता है, नेटवर्किंग में क्या आता है, कंप्यूट में क्या आता है, और जनरल सर्विसेज, ओवरऑल बहुत सारी सर्विसेज। सो माइक्रोसॉफ्ट 100+ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमने जनरली, आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने ये जस्ट चार्ट दिखाया आपको। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे कि मैनेजमेंट ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ग्रुप। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ कंफ्यूजन? हम्म, नहीं ना? मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर क्या होता है पता है? मल्टीपल मल्टीपल एजूर सब्सक्रिप्शन होते हैं। मतलब, और उसके बाद 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप, 10,000 ना, 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप सपोर्ट इन अ सिंगल डायरेक्टरी। अब तुमने जो एक फ्री टायर सब्सक्रिप्शन लिया है, उसका एक डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने तुमको एक डायरेक्टरी बना के दिया है, दैट इज द डिफॉल्ट। तुमने अभी जो ईमेल आईडी दिया है, राइट, तुम्हारा एक फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर तुम्हारा एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, उसको हम एजूर डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, एजूर डायरेक्टरी, so that is the part of identity and access management. So in this management group, that is the one of the container, मतलब एक समझ लेना, that is one of the folder. Okay, so within that container we have that management group. Within the management group multiple Azure subscription. Okay, और next point क्या है कि 10,000 अप टू द 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप, ये ऊपर वाला मैनेजमेंट ग्रुप सपोर्ट इन अ सिंगल डायरेक्टरी। सिंगल डायरेक्टरी में तुम 10,000 तक मैनेजमेंट ग्रुप सपोर्ट करता है। ओके, अभी अभी इसकी हियरार्की कैसी होती है? जनरली हम कोई भी सर्विस जब बनाते, तो ये कैसा होता है, और मैनेजमेंट वाला ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, उसके अंडर क्या क्या और कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मैनेजमेंट ग्रुप है, मैनेजमेंट ग्रुप है। ओके, अभी इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे दो सब्सक्रिप्शन है। ओके, एजेड एजेड सब्सक्रिप्शन 1 और एजेड सब्सक्रिप्शन 2। ओके, और सब्सक्रिप्शन के अंदर, ओके, तुमने एक बार सब्सक्राइब कर लिया, मतलब सब्सक्रिप्शन ले लिया। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसके अंदर आता है तुम्हारा आरजी, दैट इज द रिसोर्स ग्रुप। ओके, ये हो गया फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर तुमने क्या बना दिया? दो रिसोर्स ग्रुप बना दिए, RG1 और RG2। और इसके अंदर तुम क्या बनाओगे? रिसोर्सेस। किसके अंदर? रिसोर्स ग्रुप के अंदर। रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, और इसके भी अंदर तुम बना सकते हो रिसोर्स, इसके भी अंदर बना सकते हो रिसोर्स। तो फर्स्ट पार्ट इज अ मैनेजमेंट ग्रुप, सेकंड पार्ट इज योर सब्सक्रिप्शन, ये याद रखना। हायरार्की कैसी है इसकी? Third part is your resource group, RG, and fourth part is your resource. क्लियर? ये हायरार्की, ये समझना है और आगे जाना है। मुझे थेरोटिकल पार्ट है, ओके, ये आपको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं तुमको
क्लियर कर रहा हूँ हर एक कंसेप्ट। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, हायरार्की बताओ, मैनेजमेंट ग्रुप उसके अंदर क्या क्या आता है? हम्म। रिसोर्स ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे क्या आता है? मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे मैनेजमेंट ग्रुप के नीचे तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आएगा, राइट? और सब्सक्रिप्शन के नीचे तुम्हारा रिसोर्स ग्रुप आएगा, और रिसोर्स ग्रुप के नीचे तुम्हारे रिसोर्सेस आएंगे, राइट? हेलो। यस यस। हाँ, तो याद रखना। अभी हम नीचे से स्टार्ट करते हैं रिसोर्स। अभी रिसोर्स क्या होता है? आप क्या करते हो कि अगर कोई भी सर्विस आपको मतलब क्रिएट करनी है, क्रिएट करते हो तो हम क्या करते हो कि सिलेक्शन होता है वहां पे, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किसका होता है? फर्स्ट, फर्स्ट सिलेक्शन होता है तुम्हारा रीजन का, करेक्ट? कौन से रीजन में सर्विस बनानी है, राइट? पहले सिलेक्शन होता है तुम्हारा रीजन का। तुम्हें पहले क्या करना पड़ता है कि कौन सी जियोग्राफिकल एरिया में आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल, मुझे ईस्ट एशिया में बनाना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बनाना है, या फिर तुमको यूरोप में बनाना है, ओके, या फिर इंडिया में बनाना है, ओके। अभी ये हो गए तुम्हारे जियोग्राफिकल एरिया। अभी यूरोप मतलब ऐसा तो नहीं है ना, यूरोप का कोई शहर, मतलब यूरोप मतलब क्या हो गया, एक एरिया हो गया, दैट इज द रीजन हो गया यूरोप। एक पर्टिकुलर यूरोप हो गया, इसमें ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब हो गए, ओके। एक रीजन सेलेक्ट कर लिया। बाद में तुम इसमें सेलेक्ट क्या करोगे? रीजन के बाद तुमको जोन तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट? अगर तुमको चाहिए तो इसके लिए भी पैसा लगता है, इसकी अलग प्राइस होती है, ओके। ये जोन मतलब क्या करना है, डेटा सेंटर। अगर अवेलेबिलिटी जोन चाहिए तो अवेलेबिलिटी, ओके। ये दो बात आपने सेलेक्ट कर ली। अभी बाद में सेलेक्ट क्या करना पड़ता है आपको? सब्सक्रिप्शन, करेक्ट? तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कौन सा है वो बताना पड़ेगा कि नहीं भाई? तुम फ्री टायर में बना रहे हो या किस में बना रहे हो, करेक्ट? और आप कौन सी सर्विस बना रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाद में तुम क्या सेलेक्ट करते हो? तुम्हारा उसका रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करते हो, आरजी, रिसोर्स ग्रुप। मतलब अभी अगर फॉर एग्जांपल मेरे को बनाना है वीएम या स्टोरेज अकाउंट, या फिर तुमको वीएन वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, या फिर ऐप सर्विसेज बनानी है, ओके, दैट इज द पैस सर्विसेज, ओके। अगर फॉर एग्जांपल एसक्यूएल डेटाबेस बनाना है आपको, या फिर तुमको एजूर फंक्शन बनाना है, ओके। ये तुम्हारी कोर सर्विसेज है। ये कोर सर्विसेज किस पे डिप्लॉय होंगी? योर आर्किटेक्चर पे, मतलब हार्डवेयर पे। देखो इंक्लूडिंग है यहाँ पे कोर सर्विसेज, ओके। पहले हमने क्या किया, उसका फिजिकल इंफ्रा सेलेक्ट कर लिया, फिजिकल इंफ्रा सेलेक्ट किया। फिजिकल इंफ्रा सेलेक्ट करने के बाद तुमने क्या किया कि तुम्हारी कौन सी कोर सर्विसेज तुमको डिप्लॉय करना है, किस पे करना है, उस पे। किस पे? फिजिकल इंफ्रा पे, ओके। कहाँ पे करना है, कौन से रीजन पे करना है, कहाँ पे जोन में कौन सा करना है, सब्सक्रिप्शन कौन सा है, और रिसोर्स ग्रुप कौन सा है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ये तुम्हारी, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा रिसोर्स हो गया, समझ रहे हो? ये वो वाला, ये कोर सर्विसेज तुम्हारी रिसोर्स हो गया, राइट? नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक आता है आरजी, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप। अभी रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? अगर तुमको कोई रिसोर्स बनाना है तो कोई तो एक ग्रुप लगेगा, राइट? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
to group the resources into the single unit. So every resource need to be the part of a resource group. Without resource group आप रिसोर्स नहीं बना सकते. अभी क्या होता है कि आपने एक अकाउंट परचेस किया, मतलब आफ्टर एजूर अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा. करेक्ट. सो हर एक रिसोर्स ग्रुप का एक रीजन होगा और लोकेशन होगा. एवरी रिसोर्स ग्रुप हैव लोकेशन. विदाउट लोकेशन आप रिसोर्स ग्रुप नहीं बना सकते. ओके. सो रिसोर्स रिसोर्स जो होता है, मतलब तुम्हारी कोर सर्विसेज कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन रिसोर्स ग्रुप, आरजी. ओके. और रिसोर्सेज तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हो सकते हैं. नो इशू. इट इज द पॉसिबल. अभी देखो कैसा होता है कि रिसोर्स बना दिया ये रीजन वन में. दूसरा तुम कहाँ बनाओगे? रिसोर्स बना दिया, ये बना दिया तुमने रिसोर्स रीजन टू में. लेकिन इस रीजन में तुमको क्या बनाना पड़ेगा? रीजन मतलब तुम्हारा लोकेशन हो गया आरजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ये मेरा ये पूरा वर्चुअल मशीन का सेट है, 10 वर्चुअल मशीन. यहाँ पे मेरे को डेटाबेस बनाने हैं. ओके. डेटाबेस सर्विस, फाइल सर्विस, और यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बनाने हैं. वर्चुअल नेटवर्क. तो अगर तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, तो तुम क्या करोगे? बाइफरगेट करने के लिए इसके लिए 10 वीएम के लिए एक आरजी बनाओगे, RG1, डिफरेंट आरजी, और ये 10 वीएम उसके अंडर आएंगे. इसके लिए तुम अलग बनाओगे, क्योंकि इसमें तो मिक्स नहीं करोगे ना तुम. ये क्या करोगे? RG2 इसमें बना दोगे. तो आप रिसोर्स ग्रुप से भी बायफरगेट कर सकते हो. ओके. लिस्ट निकालने की ये डेटाबेस कहाँ पे है, यहाँ पे RG3 बना दोगे. सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? इतना भी हार्ड नहीं है. Resource in a resource group can be moved from one resource group to another resource group, but in one time. Okay, only associated in one resource group. आप अगर बाय मतलब गलती से एक वर्चुअल मशीन एक रिसोर्स ग्रुप में बना दिए, रिसोर्स ग्रुप वन में, और प्रॉब्लम ये हो गया कि वहां पे आपको बनाना था RG2 में, रिसोर्स ग्रुप टू में. ओके. वहां पे बनाना था. तो इसमें क्या कर सकते हो? तुमको एक ऑप्शन मिलता है, वहां से तुम ये वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप टू में मूव कर सकते हो. ओके. RG में. तो वहां से तुम बना सकते हो. समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? रिसोर्स ग्रुप अभी Yes, मैंने sir. बोला. हाँ. अभी फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा रिसोर्स ग्रुप है. ओके. इसके अंडर तुम एक वेब के लिए अलग रिसोर्स ग्रुप बनाओगे, डेटाबेस के लिए अलग बनाओगे, उसके बाद वीएम के लिए अलग बनाओगे, और उसके बाद क्या है तुम्हारा स्टोरेज, उसके लिए अलग बनाओगे. अलग अलग सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट. करेक्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर ना? रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो अभी इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ये रिसोर्स रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स तुम्हारा सिंगल एंटिटी हो गया, रिसोर्स ग्रुप में तुम्हारे मल्टीपल रिसोर्सेस उसके उसके अंडर आएंगे. ओके.
तो मैनेजमेंट ग्रुप में पहले तुम्हारा कंटेनर मतलब मैनेजमेंट ग्रुप रहेगा, उसके अंडर तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रहेगा, सब्सक्रिप्शन के अंडर तुम्हारा आरजी मतलब रिसोर्स ग्रुप बनेगा, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर तुम्हारे रिसोर्सेस बनेंगे, मतलब तुम्हारी कोर सर्विसेज बनेगी। सो यहाँ पे आरजे ग्रुप जो बन रहा है उसमें वीएम और स्टोरेज कैन नॉट बी कंबाइन। यस, बना सकते हो, ओके। नो इश्यू, बट इन द सेम एप्लीकेशन का होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा टूल चेन का है, टूल चेन दैट इज द एप्लीकेशन, ये कस्टमर अलग है, इसका ओनर अलग है, एप्लीकेशन, ओके, मतलब ये कोई वर्चुअल मशीन हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, डेटाबेस हो गया, ये कोई अलग ये का तो नहीं होगा ना। तुम्हारे पास 5 कस्टमर है अलग अलग। तो मुझे बताओ, नंबर 1 वाले कस्टमर का स्टोरेज तुम नंबर 2 के स्टोरेज आरजी ग्रुप में नहीं बना सकते, करेक्ट? दैट्स करेक्ट। हाँ, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हाँ अगली बार अगर तुम क्या करोगे कि भाई हाँ इसका क्या है कि टूल चेन है, इसका अगर टूल चेन नामक एक एप्लीकेशन है, ओके, तो इसके वीएम 5 आ गए और इसके स्टोरेज 5 आ गए, तो तुम क्या करोगे कि इसमें बना भी सकते हो, नो इश्यू, इस रिसोर्स ग्रुप में बना सकते हो सेम एप्लीकेशन। या फिर तुमको अच्छे से अगर मैनेज करना है तुम्हारा क्लाउड इंफ्रा, तो तुम वीएम के लिए अलग आरजी बनाओगे या स्टोरेज के लिए अलग आरजी बनाओगे, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कैसे मैनेज करते हो, ओके। तो तुमको ये समझना है कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है। रिसोर्स ग्रुप में हम क्या करते हैं कि उसके अंडर हमारे रिसोर्सेस होते हैं, तो हम उसको बाइफरगेट करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए हम रिसोर्स ग्रुप के अंडर, और रिसोर्स ग्रुप को क्या लगता है, लोकेशन लगेगा, रीजन लगेगा, सब्सक्रिप्शन लगेगा, राइट? ऐसे तुम उसको मैनेज नहीं कर सकते, करेक्ट? वन बाय वन रिसोर्स ग्रुप हो गया और रिसोर्स हो गया। अभी तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो है कोर सर्विस, इसमें बट आती है। विच वन इज गुड सर, लाइक अलग अलग बनाना ठीक रहेगा कि कंबाइन दे सकते हैं फॉर देखो सेम अभी कस्टमर। कैसा होता और है कि सेम कस्टमर हम टॉकिंग। जनरली जनरली क्या होता है कि अभी अब ये तुम्हारा एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ऐप वन, ओके, और यहाँ पे कस्टमर है फॉर एग्जांपल abc@.com, कुछ तो होगा, फॉर एग्जांपल gmail.com। इसने क्या बोला भाई, मेरे को 5 वीएम चाहिए, ओके, और ये एसक्यूएल जो सर्विसेज है दैट इज पैच सर्विसेज, वो जो 2 चाहिए, और एक वेब सर्वर चाहिए, ओके। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, एक रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो, किसके नाम का, आरजी, ऐप का नाम दे दो ऐप 1, ओके, ये दे दिया। रिसोर्स ग्रुप में ये कस्टमर तुमको बोलेगा कि लोकेशन कौन सा है, तो वहां पे यूएस लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन यूएस डाल दिया, दैट इज योर रीजन, ओके। सब्सक्रिप्शन तुमको खुद को तय करना पड़ता है, ये कंपनी को अपने को पता होता है कि सब्सक्रिप्शन कौन से सब्सक्रिप्शन में काम करना है, तो हर एक रीजन के अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं, ओके। तो इसमें मैंने फॉर एग्जांपल यूएस का ले लिया सब्सक्रिप्शन, यूएस यूएस ऐप डॉट कोड, ओके, दैट इज योर सब्सक्रिप्शन, और इसके अंदर ये तुम्हारा आरजी बन गया। अब तुम क्या कर सकते हो कि 5 वीएम भी बना सकते हो, एसक्यूएल भी बना सकते हो, वेब सर्वर भी इसके अंदर बना सकते हो, और आरजी जब बना सकते हो उसका एक टैग वैल्यू रहेगा, टैग, टैग में तुम इसका ओनर का डिटेल दे सकते हो, ओनर नेम, उसके बाद एप्लीकेशन कौन सा है वो दे सकते हो, और इसमें तुम्हारी ओनर की आईडी दे सकते हो, सब कुछ ये इंफॉर्मेशन रहेगा तुम्हारा रिज्यूम। आरजी में जाओगे तो तुमको पता चलेगा दैट इज पर्टिकुलर ओनर, इस एप्लीकेशन के रिसोर्सेस इसके अंदर है। तुम जब इस रिसोर्स ग्रुप में जाओगे तो तुमको इसमें 5 वीएम मिल जाएंगे, इसमें तुम्हारे 2 एसक्यूएल सर्विसेज बन मिल जाएंगी, और तुम्हारा वेब सर्वर मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मेरे को इसी इसी एप्लीकेशन के मतलब बाइफरगेट करना है, वीएम अलग रखना है, एसक्यूएल अलग रखना है, वेब सर्वर अलग रखना है, तो सेम एप्लीकेशन के अलग अलग 3 रिसोर्स ग्रुप बना दो, एसक्यूएल उसमें डाल दो, वीएम उसमें डाल दो, और वेब सर्वर उसमें डाल दो। समझ में आ रहा है?
yes. हाँ, So once it is created, it cannot be separated. Like अगर बन गया तो उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते सेपरेट उसको. सेपरेट मतलब मूव करना पड़ता है फिर वो पर्टिकुलर Okay, रिसोर्स। अगर एक आरजी में ये वो डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है फिर अगर तुमने VM1 बना दिया, ओके, और यहाँ पे वेब सर्विसेज भी बना दी इस आरजी के अंडर, ओके, अगर तुमको पता चला, तुमको तुमको क्या करना है अभी RG2 में ये वेब सर्वर के लिए सेम एप्लीकेशन का इसी ओनर का तुमने RG2 बना दिया उसमें चाहिए, तो ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी ये जो सर्विस है ना ये मूव करनी पड़ती है। और ये वेरी मतलब थोड़ा हार्ड स्टेप है, प्रॉब्लम आ जाता है इसमें, एरर आ जाता है okay, मतलब। हाँ, ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर यहाँ पे चेंज कर दो, वर्स्ट केस में ऐसा होता है। तो प्रॉब्लम तो होता नहीं, एक ही रिसोर्स ग्रुप में हम रख सकते हैं एक एप्लीकेशन, एक ओनर। अगर अलग अलग ओनर है, अलग अलग लोकेशन है, तो तुमको रिसोर्स ग्रुप तो अलग ही बनाना पड़ेगा ना भाई, correct, correct. उसमें तुम मिक्स तो नहीं करोगे ना, कोई वो बात ही नहीं कर रहा भाई। ये आप बता रहे थे सब्सक्रिप्शन अलग अलग होता है इन द सेंस व्हाट. सब्सक्रिप्शन कैसा होता है कि अभी देखो मुझे एक बात बताओ, आपने लिखा है अभी यूएस सब्सक्रिप्शन. हाँ अगर मुझे एक बात बताओ, मेरे पास रीजन कितने हैं, अभी मैं कितने रीजन पे काम करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया पे काम करता हूँ, राइट। करेक्ट, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपने ये लिया नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ देखो, इंडिया में काम करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे यूरोप पे भी काम करता हूँ और US में भी काम करता हूँ, करेक्ट. तो इसका एक सब्सक्रिप्शन होगा, राइट। ये सब्सक्रिप्शन टर्म यहाँ पे क्या मतलब डिफाइन करती है. सब्सक्रिप्शन मतलब वो अकाउंट होता है, ओके, ओके, मतलब मेरा अकाउंट। अगर इंडिया का अकाउंट है तो हाँ, फॉर मी इट्स एन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इंडिया हाँ, ऐसा. हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, तुम अगर ये पूरी की पूरी सर्विसेज बना रहे हो तो बिलिंग कहाँ से करोगे, ओके, बिलिंग एंड कॉस्टिंग इंडिया. कहाँ से करोगे, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लगेगा, और सब्सक्रिप्शन के अंडर तुम्हारा बिलिंग और कॉस्टिंग होता है, इनवॉइस जनरेट होता है यहाँ पे। और मुझे ओके, एक बात बताओ, अभी ये सब्सक्रिप्शन अगर इंडिया का है उसमें तुमने यूरोप घुसोड़ दिया है, यूरोप की रिसोर्सेज, तो तुम्हारा बिलिंग सब एक फिर बाइफरकेट करते बैठोगे क्या, यूरोप कौन सा है इंडिया कौन सा है। तो इंडिया के लिए अलग सब्सक्रिप्शन, यूरोप के लिए अलग, US के लिए अलग। तो ओके, इसमें जितने रिसोर्सेस कंप्लीट आएगा वो हम क्लाइंट को ये इतना बिलिंग दे देते हैं, ये यूरोप के लिए, ये इंडिया के लिए, ये US के लिए, और उतना पे कर दो, खत्म। सब्सक्रिप्शन नीचे टॉपिक है वो, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं, ओके। हमने अभी क्या देखा कि रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप एक क्लियर। यस. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है कि एजूर वर्चुअल मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कोर सर्विसेज दैट इज द वर्चुअल मशीन। अबे Azure वर्चुअल मशीन क्या होता है, Azure वर्चुअल मशीन इज वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ ऑन डिमांड स्केलेबल एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट Azure offers, करेक्ट। मतलब ये ऑन डिमांड है, स्केलेबल है, मतलब इसको हम स्केल कर सकते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसके बाद दैट इज द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से, और ये सर्विस ऑफर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ओके। ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है फॉर द वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है पता है किसी को? हम्म, It's like वर्चुअल physical, it is not there. वर्चुअलाइजेशन के दो पार्ट है, एक होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, अगर ये मेरा हार्डवेयर है और इसकी 500 GB कैपेसिटी है, राइट। इस पे मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा, ओल्ड वाला सिनेरियो बना दिया, तो ये क्या करेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 500 GB इसको देना पड़ेगा, राइट, करेक्ट।
हेलो। ओके। हार्डवेयर जो है, अगर इस हार्डवेयर पे, अगर ये मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप की मेरी हार्ड डिस्क है 500 GB। अगर मैं इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा, तो अगर इस पे कोई वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है, दैट इज माय लिगेसी। ओके, लिगेसी सिस्टम। सो आई विल, मीन्स क्या हो गया अननेसेसरी, मेरे को ये पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे लेयर, मतलब किस पे लेआउट हो गई, ये हो गया इस हार्डवेयर पे, मतलब 500 GB। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में क्या होता है कि ये तुम्हारी 500 GB हार्डवेयर है, इसमें हाइपरवाइजर मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, हाइपरवाइजर। ओके, ये इंस्टॉल होता है, और ये हाइपरवाइजर हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक ऑफर, मतलब अपने को इंस्टॉल करने के लिए इस पे मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ, OS 1, OS 2, OS 3, OS 4। अगर ये 500 है, तो इसको मैं 500 के अलग अलग 4 स्लॉट बना सकता हूँ, वर्चुअलाइज कर सकता हूँ लॉजिकली। तो मतलब ये लॉजिकली सेपरेट होगा, ये वीएम, ये वीएम, ये इसमें अगर मैंने 5, अगर 600 है, तो चार मतलब 250, 250, 250, 250 दे दिया मैंने सबको। दैट इज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इस हार्डवेयर का वर्चुअलाइजर, हाइपरवाइजर। क्लाउड में क्या होता है, ऑलरेडी पूरे के पूरे हाइपरवाइजर होते हैं, उनका खुद का हाइपरवाइजर है, एजूर हाइपरवाइजर करके। तो वो हाइपर वी करके, तो वो हाइपरवाइजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो हम इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वो जो सर्वर है, जितनी कैपेसिटी है उतना हमको जितना चाहिए हम उतना यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्लाउड में, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक, ये हो गया तुम्हारा हार्डवेयर, दैट इज द वर्चुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक हाइपरवाइजर, फॉर एग्जांपल अभी ये मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है, इस पे मैंने क्या किया, एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम में। कौन सा हाइपरवाइजर? VMware। ओके, VMware करके एक हाइपरवाइजर है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैंने इंस्टॉल किया, तो उस VMware में मैं कितने ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ, मल्टीपल, राइट? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता हूँ ना। तो दैट इज योर सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब ये देखो, ये मेरा VMware है, इसको क्या हो गया भाई, अनइंस्टॉल कैसे हो गया? हाँ, ये शायद ये अनइंस्टॉल हो गया। VMware वर्कस्टेशन 16 प्लेयर, ये सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, ये सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्टॉल किया, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मतलब मैं पर्टिकुलर वीएम क्या करूंगा, वो VMware ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद उसमें मल्टीपल लिनक्स की, विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूंगा, दैट इज योर सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजर। ओके, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर? हेलो। यस सर, सर। बाकी कोई बोल ही नहीं रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि सुन नहीं रहे, वही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। अभी तो स्टार्ट ही किया है, बाकी Yes, अभी sir. Clear, sir. बहुत सारी सर्विसेज और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सर्विसेज बाकी है, इतने जल्दी कैसे तुम बोर हो गए, मेरे को ही समझ में नहीं आया। हम्म, चलो। सर, अभी क्या होता है, Azure वर्चुअल मशीन गिव यू अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअल मशीन क्या करता है कि वर्चुअलाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट हैविंग अ बाय एंड मेंटेन द फिजिकल हार्डवेयर दैट रन ऑन इट।
मतलब क्लाउड में जनरली क्या होता है कि हार्डवेयर में हमको कोई बाय मतलब कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली वर्चुअल मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बना सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे हाइपर वी नामक हाइपरवाइजर एजूर में होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ। एजूर हाइपरवाइजर। Okay. ये देखो Azure Hyper-V is the customized version of the Microsoft Hyper-V। Hyper-V नामक सॉफ्टवेयर होता है क्लाउड में हर एक हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, स्पेशली अडेप्टेड फॉर द Azure क्लाउड इन्वायरमेंट। इट्स एक्ट एज अ वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअलाइज करने के लिए यूज होता है, एक्ट एज अ वर्चुअलाइजेशन लेयर दैट इनेबल्स द क्रिएशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वर्चुअल मशीन विद इन Azure। Correct? This allow to multiple operating system and workload to run concurrently on your same physical infrastructure, enhancing the resource utilization and flexibility। अगर Azure का हाइपरवाइजर हाइपर फी है, तो AWS का क्या है? ये भी पूछ सकते हैं तुमको इंटरव्यू में। इसमें देख लो, Amazon सर्विसेज में द नाइट्रो हाइपरवाइजर इज यूजिंग Nitro। Okay, the core component are the responsible for managing the virtual machines and the allocation resource to them। सेम होता है, फंक्शन सेम, लेकिन उनका हाइपरवाइजर का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अलग। करेक्ट? अभी ये वर्चुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, सिंपल है। ओके, क्लियर ना? Yes, ओके, सो वर्चुअल मशीन आपको पता चल गया। वर्चुअल मशीन में वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है वो भी पता चल गया। अभी क्या होता है कि अभी एप्लीकेशन रिसोर्स नेम, अभी देखो सपोज दैट कोई वर्चुअल मशीन बनाना है। ओके, थिंक अबाउट द बिफोर क्रिएशन ऑफ द वीएम और वर्चुअल मशीन, तो क्या करोगे तुम? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लगता है उसको? हमने बनाया था, भूल गए? एप्लीकेशन रिसोर्स नेम, राइट? रिसोर्स नेम, उसके बाद क्या लगेगा? लोकेशन, वेयर रिसोर्सेस स्टोर। ओके, लोकेशन लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? साइज ऑफ वीएम। उसके बाद क्या लगेगा? कितने नंबर चाहिए, मतलब कितने वीएम, नंबर ऑफ वीएम। उसके बाद क्या लगेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम वीएम पे रन करने वाली वो चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हारा नेटवर्किंग रिलेटेड। ओके, ये सब तुमको तुम्हारे माइंड में आना चाहिए अगर वीएम बनाना है तो। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? yes. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या 5 मिनट का ब्रेक लें? पानी पी लो 5 मिनट। ओके। ठीक है। हम्म।
ओके, स्टार्ट करते हैं। गणेश, आले का सगळे? यस यस. ओके. यस सर. गणेश समजतं का रे? गणेश राणे. नेक्स्ट टॉपिक एआरएम। एआरएम क्या होता है? अजूर रिसोर्स मैनेजर। अजूर रिसोर्स मैनेजर क्या होता है? इट्स अ डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल, okay, which can be help us to create resources। अभी कैसा होता है क्रिएट? एआरएम क्या होता है? ओके, एआरएम टेम्पलेट मतलब क्या होता है? अगर एजूर को कम्युनिकेट करना है, एजूर पोर्टल कैसे कम्युनिकेट करता है? एआरएम से कम्युनिकेट करता है। ओके, अगर कोई भी रिसोर्स बना हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज होगी, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने डेटा स्टोरेज बनाया, डेटा स्टोरेज। उसके बाद वेब एप्लीकेशन बनाया, वेब ऐप। उसके बाद फॉर एग्जांपल वीएम बनाया। उसके बाद मैंने सर्वर मैनेजमेंट बना दिया। ओके, ये सब सर्विसेज आप अगर बनाते हो तो ये बनती है तुम्हारी एआरएम से। एआरएम टेम्पलेट, दैट इज ओन टेम्पलेट ऑफ एजूर, एजूर रिसोर्स मैनेजर। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ओके। ऑथेंटिकेशन के लिए तो हम हमारा क्रेडेंशियल देते हैं, राइट? तो ये होता है जेसन फॉर्मेट में। ओके, जेसन फॉर्मेट में होता है। ये होता है एआरएम टेम्पलेट। टेम्पलेट,
जब आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो मैन्युअली, तो उसके पीछे तुम्हारा जेसॉन मतलब एक टेम्पलेट बनता है। ओके, उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है। जैसे तुम वेब पेज बनाते हो HTML, तो उसके बीच में इंटरनेट सेटिंग में जाके अगर आप देखोगे तो उसके बीच में उसके बैकएंड में एक HTML का पूरा स्क्रिप्ट लिखा होता है। तो वो स्क्रिप्ट आपको नहीं दिखता, आपको ह्यूमन रीडेबल में आपको क्या दिखता है, वेब पेज दिखता है। वैसे ही हम वर्चुअल मशीन बनाने के बाद हमको वर्चुअल मशीन की सर्विस दिखेगी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन उसको बनाने के लिए हम एजूर में जेसॉन लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, तो हम ये बना कैसे बना सकते हैं, एजूर पोर्टल से भी बना सकते हैं, राइट। एजूर पोर्टल मैनुअल हमने बनाया था, पावर शेल से भी बना सकते हैं। वी हैव ऑप्शन पावर शेल। उसके बाद हम एजूर CLI से भी बना सकते हैं, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, और रेस्ट मतलब तुम कुछ थर्ड पार्टी एप्स भी बना सकते हो, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। ओके, दैट इज ASD क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे प्लेटफॉर्म है। हमने पिछली बार कैसे बनाया था, एजूर पोर्टल से। पावर शेल का भी ऑप्शन आता है, एजूर CLI भी आता है। ये मैं प्रैक्टिकल तुमको बाद में दिखाऊंगा, ये याद रखना। ओके, तो इसमें भी ज्यादा टाइम चल जाए। नहीं, बट एक क्वेश्चन था सर। बोलो। मतलब एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर एज़ुरे पोर्टल से बना सकते थे तो एज़ुरे सीएलआई का ऑप्शन क्यों दिया गया? मतलब एनी पर्टिकुलर टेक्निकल रीजन बिहाइंड दैट? हाँ, देखो, एजूर CLI से तुम बल्क में ज्यादा से ज्यादा बना सकते ओ, और हो। ओके, पावर शेल अगर मैं बात करूँ तो? पावर शेल में, हाँ वो देखो, पावर शेल एजूर CLI, पावर शेल क्या होता है कि तुम्हारा विंडोज सपोर्ट करता है, और एजूर CLI कमांड लाइन इंटरफेस लिनक्स सपोर्ट करता है। बैश, तुम्हारी शेल क्या होगी, बैश होगी। अगर ओके। आप तुम्हारा ये एजूर का पोर्टल अगर ओपन करोगे, ओके, एजूर का अगर पोर्टल ओपन करोगे, एजूर पोर्टल, ये लॉगिन नहीं हो रहा है। ओके, ये लॉगिन हो जाएगा, देख बता दूंगा। ओके, अभी स्टक हो गया हो, मल्टीपल रिक्वेस्ट आने को कभी कभी होता है ऐसा प्रॉब्लम। ओके, तो ये ऑप्शन है, एजूर CLI, एजूर पावर शेल, एजूर पोर्टल। तो पावर शेल पावरफुल कमांड है। ओके, कमांड लाइन पे तुम क्या कर सकते हो कि वहां पे अगर कुछ ऑटोमेशन करना है स्क्रिप्ट के द्वारा, ओके, अगर फॉर एग्जांपल तुमको वहां की सब्सक्रिप्शन की पूरी डिटेल चाहिए, तो तुमने एक पावर शेल में स्क्रिप्ट लिखा, तो तुम एजूर पोर्टल से कैसे काम करोगे, नहीं करना, नहीं कर सकते ना। तुम क्या राइट। करोगे, पावर शेल में जाओगे, वहां पे स्क्रिप्ट रन करोगे, तुमको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। वो भी कंबाइन में। नहीं तो वन बाय वन पोर्टल में आपको अगर हर एक VM का सब्सक्रिप्शन चेक करना है या टैग चेक करना है, तो तुमको वन बाय वन सब कुछ चेक करना पड़ेगा, राइट। उसमें टाइम अंडरस्टूड। कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। तो पावर शेल और CLI इसके लिए दिया है कि अगर स्क्रिप्टिंग का कोई काम करना है तो तुम इससे कर सकते हो। दैट इज द वे, अनदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वे। अब जैसे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स में CLI भी होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, राइट। वो दो दो क्यों होता है कि तुमको जहां पे काम करना है करो, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस कभी भी पावरफुल होता है, करेक्ट। यस। हाँ, तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा एजूर सब्सक्रिप्शन। हम धीरे धीरे रिसोर्स ग्रुप
रिसोर्सेस एआरएम टेम्पलेट हमने बना दिया, बाद में आप ऊपर जा रहे हैं अभी हम कहाँ, सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन सिंपल सिंपल मीनिंग ध्यान में रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बिलिंग प्लस एक्सेस कंट्रोल बाउंड्रीज, एक्सेस कंट्रोल बाउंड्रीज। अभी बिलिंग तो तुमको समझ में आ गया, राइट? अगर सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो तुमको यहाँ पे इनवॉइस जनरेट होगा। ओके, यहाँ पे तुमको बिलिंग और कॉस्टिंग पता चल जाए। एक्सेस कंट्रोल बाउंड्रीज क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल मेरा सब्सक्रिप्शन है वीएम, ईएम यूरोप का ईएम यूडीसी ऐप। ओके, और इस ईएम यूडीसी ऐप में मल्टीपल आरजी है। ओके, और इसके आरजी के अंडर मल्टीपल वर्चुअल मशीन है एंड मल्टीपल सर्विसेज, मतलब 1000+। ओके, तो अगर इस, आपको क्या करना है, हर एक वीएम को रीडर का एक्सेस देना है। क्या देना है? रीडर। ओके, आपको नहीं चाहिए कि इसमें मेरे को ये कौन सा वाला, मतलब फॉर एग्जांपल ADC@gmail, इस आइडेंटिटी को, मतलब इस यूजर को, इस यूरोप के लिए इस सब्सक्रिप्शन के हर एक रिसोर्स को वो एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है, देख सकता है। तो तुम क्या करोगे कि इसके अंदर जाओगे, रिसोर्स ग्रुप के जाओगे, इस वीएम के जाओगे, आईएम में जाओगे और उसको एक्सेस दोगे। क्या? रीडर। इसमें कितने हैं? 1000। कितना टाइम लगेगा? एक को अगर आपको 5 मिनट लगा तो 1000 गुणिले मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 5000 मिनट हो गया। तो इतना टाइम लगेगा। तो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, इस सब्सक्रिप्शन में जाके पर्टिकुलर इस आईडी को रीडर एक्सेस दे दो, तो ये पूरा का पूरा रिसोर्स ग्रुप और एक्सेस के लिए इस आईडी के लिए सिर्फ रीडर हो जाएगा। तो इसके दो फंक्शन है, वन इज द बिलिंग, नेक्स्ट इज द एक्सेस कंट्रोल। क्लियर? एकदम सिंपल वर्ड में। क्लियर ना? To start the working with the Azure, we need to the subscription of the Azure, correct? Azure subscription provide you with the authentication at and authorized access to the Azure account, करेक्ट? मतलब जब तुम सब्सक्रिप्शन, मतलब काम करना करोगे, स्टार्ट करोगे एजूर पे, पोर्टल पे, तो तुमको एक अथोराइज अकाउंट चाहिए, दैट इज द सब्सक्रिप्शन। उस अकाउंट के अंदर आप काम करोगे तो तुम्हारा बिलिंग वगैरह सब राइट होगा, और एक्सेस भी तुमको कौन सा चाहिए, तुम सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हो, रिसोर्स ग्रुप के लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हो, करेक्ट? तो बिलिंग बाउंड्रीज generate the separate billing reports and the invoice for the each subscription and control resources, correct? ओके। हाँ, सिंपल। और ये जो बिलिंग इनवॉइस क्रेडिट होता है, दैट इज फॉर डेली, मंथली, ईयरली, हाउ इट इज? और मंथली। इसका कोई ऐसा होता है कि हम लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यस, मंथली ले सब्सक्रिप्शन? सकते हो तुम। मंथली भी होता है। अगर तुम्हारी, अगर कोई वर्चुअल मशीन तुमको क्रिएट करना है, ओके, आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, भाई तुम ईयरली और 3 ईयरली पैकेज ले लो, आपको डिस्काउंट मिले। करेक्ट। एक बार 1 साल या 3 साल का तुमने ले लिया तो तुम्हारा वो इनवाइस उसके हिसाब से निकलेगा, राइट? और 3 साल के लिए लिया है तुमको अगर, तो तुमको वीएम के लिए डिस्काउंट भी मिल सकता है, दैट इज अंडर योर सब्सक्रिप्शन, करेक्ट? करेक्ट। हाँ। यस। तो नेक्स्ट पार्ट होता है तुम्हारा, क्या है कि कंप्यूट सर्विस, राइट? कंप्यूट सर्विस। सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया? यस। कुछ नहीं यार, सिंपल है। सब्सक्रिप्शन मतलब एक तुम्हारा एक आईडी होगा, ओके, एक अकाउंट होगा। उस अकाउंट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अकाउंट का काम ही है तुम्हारा बिलिंग और इनवॉइस जनरेट करना, उसके हिसाब से आपको पे करना है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को। और अगर तुमको नेक्स्ट एक उन्होंने एक फैसिलिटी दे दी कि अगर भाई पूरा का पूरा रिसोर्स ग्रुप को या पूरे के पूरे रिसोर्स को आप कब तक उसको एक्सेस देते बैठोगे, तुम उस सब्सक्रिप्शन को एक्सेस दे दो, क्या देना है। अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को सिर्फ रीडर चाहिए, ओनर चाहिए या कंट्रीब्यूट एक्सेस चाहिए, तो आप सब्सक्रिप्शन को दे दो। तो सब्सक्रिप्शन को देने के बाद उसके अंदर जितने आरजीए और उसके अंदर जितने रिसोर्सेस है, तो उसके लिए वो रीडर एक्सेस बन जाएगा, दैट पर्टिकुलर यूजर। दो ही बात है, यही ध्यान रखना। और ये बात 1 साल 3 साल का डिस्काउंट, ये जो है ना, वो तो तुमको काम करते वक्त को समझ में आ जाएगा, वो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट एंड बिलिंग। ओके,
तो अभी नेक्स्ट पार्ट है कंप्यूट सर्विसेज। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट तो बता पाएगा? यार कोई पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ, नहीं तो कैसा हो गया कि पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा यार तुमको। अगर डेडिकेटली क्लाउड में अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो बहुत सारा, मैंने उसी दिन बताया, सिर्फ एजूर पे नहीं होगा। क्लाउड के बाद भी तुमको टेराफॉर्म जानना है, एजूर डेवऑप्स जानना है, बहुत सारी लैंग्वेजेस पता होना चाहिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप याद नहीं रखोगे सब सर्विसेज, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा यार। फिर वो मजा नहीं है, आपको डेडिकेटली 1-2 घंटा देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या मतलब है, बोलो ना भाई। दैट्स करेक्ट। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, मैं तो आपको बता दूंगा, आपको 1 घंटा याद रहेगा, लेकिन बाद में रिवीजन तो आपको ही करना है ना। और इतना सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपको भी पता है यार, चैट जीपीटी है, गूगल है। चैट जीपीटी पे डालो तुम, कौन सी सर्विसेज समझ में नहीं आती है, तो आपको वहां पे सब समझ में आ जाएगा। या फिर गूगल पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, वैसे मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, वो नोट्स मैं दूंगा, नो इशू। ओके, वैसे ये डेली का तो है ही अपना, वो प्रॉपर एक नोट्स दूंगा। लेकिन वो देने के बाद आप पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर क्या फायदा होगा उसका? नोट्स मिलके क्या करोगे, क्या उसका? आपको ये छोटी छोटी बातें अगर इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे जो क्वेश्चन पूछे गए वही बातें मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातें, वो आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं यार। मेरे को टेराफॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा, जहाँ पे आपको अभी याद नहीं आएगा, जिसको पता नहीं है और जिसको पता है ये भी याद रखना। जब हम टेराफॉर्म का कोड लिखते हैं, वहां पे प्रोवाइडर ब्लॉक होता है, प्रोवाइडर ब्लॉक। ओके, तो उस प्रोवाइडर ब्लॉक में हमको ये डिफाइन करना होता है कि आपको रिसोर्सेस किस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में आपको डिप्लॉय करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एजूर में करना है, यहाँ पे एजूर आरएन लिख दिया। ओके, यहाँ पे उसकी डिटेल भरो, और यहाँ पे एक या ये होता है कि एजूर, आपने एजूर लिख दिया, टेराफॉर्म लिख दिया, और यहाँ पे ये फीचर करके एक नाम होता है, फीचर। तो उन्होंने मुझे फीचर क्या होता है करके पूछा, उन्होंने मुझे प्रोवाइडर ना पूछा, बाकी के ब्लॉक नहीं पूछे, टेराफॉर्म नहीं पूछा, ये पूछा व्हाट इज द फीचर। तो मैं ये बोल रहा हूं, तो किसी भी बात को हल्के में मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, आजकल चैट जीपीटी आ गया है भाई। खोल के, अगर वर्चुअल इंटरव्यू तो खोल के बैठ जाते, क्वेश्चन शुरू हो जाते। तो आपको एटलीस्ट कम से कम उसका ओवरव्यू, मतलब छोटा कुछ ना कुछ एक डेफिनेशन तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट होता क्या है। हम्म। तो उसकी डेप्थ को समझो तुम, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, कंप्यूट का मतलब होता है तुम्हारी मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, राइट? दैट इज योर कंप्यूट। तो कंप्यूट वेयर एप्लीकेशन आर रन्स, कहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, वो प्रोसेस होता है, और वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? तुम्हारी मेमोरी और प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होते हैं, राइट, पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो कंप्यूट सर्विसेज में, कंप्यूट सर्विसेज के अंदर तुम्हारी जो ये कंप्यूट हो गया, लेकिन कंप्यूट सर्विसेज कौन कौन सी होती है? जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी एप्लीकेशन सर्विसेज हो गया, एप्लीकेशन सर्विसेज। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, कंटेनर होता है, कंटेनर। ये कंटेनर क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ, ओके, ये याद रखना, ये टॉपिक वाइज। उसके बाद तुम्हारा एकेएस आ गया अभी, एजूर कुबरनेट सर्विसेज, एजूर कुबरनेट सर्विसेज। ओके, ये तुम्हारी कंप्यूट सर्विसेज है। अब हमने वर्चुअल मशीन देख लिया, एजूर सर्विसेज देख लिया। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, ये मुझे बताना कि वर्चुअल मशीन ये कौन सी सर्विस है? हम्म, कंप्यूटर सर्विस है ना। एस से, पैस हाँ से, दैट। या हाँ सैस दैट से? आई ए आई ए डब्ल्यू एस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। अबे हम्म। बाइफरगेट करना आना चाहिए भाई, उस दिन इतना डिटेल में बताया मैंने तुमको। यस। वर्चुअल मशीन तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आती है, फर्स्ट सर्विस है जो हम रेंट पे लेते हैं, करेक्ट, यस। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। अब एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करने के लिए हमको क्या क्या लगता है, मैंने आपको सब बता दिया, राइट?
करेक्ट ना? हम्म, या डिटेल में फिर से बताओ? भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या वर्चुअल मशीन में? चलो, कोई बोलेगा तो नहीं, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया था? पोर्टल ओपन किया, राइट? यस। बाद में क्या गए? ऑल सर्विसेज में गए। हम्म, ध्यान से देखो भाई, यार कोई बात नहीं करेगा ना तो कोई मजा नहीं यार, प्लीज बात करो। इतना मैं लिख के अच्छे से बता रहा हूँ यार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बोलो ना, मैं रिपीट करता हूँ प्लीज। हेलो? क्या हो गया आज पेपर डायसी आहे ती. क्या है यार, समझ में नाही आ रहा यार, इतना मतलब आज एवढं काय डायसी झालेलं आहे. तेच म्हणायला लागलो. काही बोलही नाही तर काहीच नाही तर का बंद करायचे क्लासेस? नावाने ऍड्रेस करा सर एकदा, कोणी आहे तर झोपले सगळे. तेच म्हणायलो यार. आता मी एवढं लिहून सांगायला लागलोय. हा. अरे पीपीटी नाहीये यार बोर व्हायला, मला सांग पीपीटी मध्ये बोर होतं? करेक्ट. मला पीपीटी मध्ये मी सांगता येते ना, मला फास्ट सिलेबस संपवायला मी संपू शकत नाही का? सांगा बरं तुम्ही. हम्म. मी एक एक गोष्ट तुम्हाला लिहून का दाखवायला, तुम्हाला ती कळाली पाहिजे आणि ते लवकर तुम्हाला ग्रास झालं पाहिजे. पण कोणी बोलायलाच तयार नाही. मला ना तर काय अर्थ नाही ना यार त्याला. गणेश! गणेश झोपला. अरे नुसतं नावाला जॉईन व्हायले त्या रे पोरं. सर मैं अरे हूँ सर। हेलो? मैं अरे क्लास सुन रहा हूँ सर। अरे बाले सर किधर है, लेकिन आप हो बोल रहे हो अरे सर, लेकिन यार, आप हो किधर? यूनुस यार तू ही बोल यार, कैसे सर करेंगे मैं यार? क्लास सुन रहा हूँ सर। हाँ? अरे सर सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अरे यार थोड़ा फिर सा नहीं, और नोट्स। रिस्पॉन्स इज मस्ट ना. यार रिस्पॉन्स नहीं देगा तो मैं ओके अकेला ओके। बड़बड़ कर रहा हूँ, मैं अभी मैं पिछली बातें नो पूछ रहा नो हूँ नो ना। नो सर, नो सर। आई एम देयर प्लीज सर, यार, आई एम देयर सर। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इतना कर लो, कम से कम एजूर फंडामेंटल तो परफेक्ट कर लो, बाकी की बातें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अगर इंटरेस्ट क्लाउड में सही सर। आप, देखो भाई मैं क्या बता रहा हूँ समझ लो, क्लाउड मस्ट है। अब ऐसा मत सोचो कि सिर्फ नेटवर्किंग से काम चल जाएगा। अगर मैं एक सिंपल सिंपल बात बोलता हूँ अभी, देखो, आपको बुरा लगेगा, किसी सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। देखो, आपको कारपोरेट में अगर जॉब करना है आगे, तो आपको एक क्लाउड आना चाहिए, नहीं तो मस्त। आपका टाइम कब खराब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अग्रीड सर. अभी हाँ। खराब चल ही रहा है सर। नहीं नहीं, वो चल नहीं रहा है बाला सर, चल नहीं रहा है। आप हाँ। इनिशियल फेज में हो, इनिशियल फेज में हो, ये यस भी, यस हाँ अच्छा ये भी अच्छा. यस मैं यस। बोल सकता हूँ। लेकिन अभी 6 महीने अगर बीत गए ना, 6 महीने इसके आगे, तो 100%। हम्म हाँ। हम्म तो आपके जगह पे दूसरे नए बंदे टाटा कम्युनिकेशन हायर अगर कर लेती है, अगर बाहर से, फिर आप पे बुरे दिन आ जाएंगे। सही सर। बराबर है कि वो नहीं यूनुस चल ही भाई? रहा है अभी। यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब सर. हाँ हाँ। नहीं अभी भी नहीं चल रहा है, मेरे को पता है तुम्हारे 100%। अभी भी स्टिल इट पता इज है। देयर, चांसेस आर देयर. करेक्ट. अभी भी मेरे को तुम्हारे टीसीएल का सब कुछ पता है, कहाँ से कौन हायर कर रहा है, अभी भी अथॉरिटी नहीं है बाहर से लेने के लिए, तुमको ही हायर करने, लेकिन तुम तैयार होगे तब ना। इफ यू आर नॉट सही है। कैपेबल टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाउड प्रोजेक्ट, देन फिर उनका कुछ नहीं भाई, वो तो फिर वो फिर क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। वो मैनेजमेंट को बोल देंगे कि भाई अवेलेबल पीपल आर नॉट कैपेबल टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाउड प्रोजेक्ट, सो प्रोवाइड द अप्रूवल टू टेक द पीपल फ्रॉम अदर साइड। तो खट 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 एक बार बंदे उठा लिए, और वैकेंसी तुमको पता होती है कितनी होती है। एक बार 15 20 25 30 लोगों ने अगर प्रोजेक्ट संभाल लिया, काम खत्म। फिर वेट करते बैठना हम्म, मत। ये इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्लास सिर्फ ज्वाइन करके सोना मत। ये सो जा रहे बंदे यार, मैं भी तुम्हारी तरह यार 5 दिन काम कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, बराबर है कि नहीं भाई यूनुस भाई? करेक्ट. मैं भी करेक्ट काम करेक्ट ही सर. कर रहा हूँ। अभी मैं इतना मन लगा कि तुमको जान से पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा ही काम है कि भाई तुम कम से कम रिस्पॉन्स दो, और छोटी छोटी बातें तो बताओ यार। और मैं तुमको अभी अगर इस स्लाइड में तुम देखोगे तो तुमको मैंने लिख के दिया है पूरा पूरा का पूरा, एक एक वर्ड, और तुमने जो जो पूछा है मैंने पूरे के पूरे तुम्हारे आंसर दे रहा हूँ। ऐसा ही नहीं कि कुछ बाद में बताता हूँ, कोई भी अभी तक बोला मैंने तुमको बाद में बताता हूँ करके? नो नो. फिर
और ऐसा है कि तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो क्या मेरे आंसर से? ऐसा ही होगा तो बोलो। नहीं सर। फिर भाई, अगर अभी एंड टू एंड बताता हूँ, ऑल सर्विसेज में जाके तुमको क्लिक करना है वीएम पे, दैट इज योर सर्विस। थर्ड पे तुमको क्या करना है, एक प्लस का। बिफोर हाँ। एक एक बताना चाह रहा था सर मैं, आपने जो सब्जेक्ट निकाला है उसमें हम्म। दे ऑफर मी टू चेंज द रोल इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन ना, गुड। हाँ टीसीटीएल में। तो हाँ हाँ वहाँ पे उन लोगों ने मुझे प्रोफाइल पूछा कि डू यू हैव एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून और Azure एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर हाँ हाँ मैनेजमेंट। हाँ 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 हाँ। सो फिर आई स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो। वही ना, हाँ बोलो यार, मैं हूं अभी ना यहाँ पे बैठा हूँ। अभी मैंने उनको बोला कि थोड़ा टाइम है सर। अरे तुम यही बट गलती मत करो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम अभी हाँ बोलो, हाँ। इंटरव्यू का प्रिपरेशन हम मैं करा दूंगा ना, तुम मेरे को वीकडेज में कॉल करो ना। ओके। अरे तुम ना क्यों बोल रहे हो? अभी ना बोल दिया तो वैकेंसी तुम्हारे लिए स्टक हो जाएगी ना भाई। करेक्ट करेक्ट वही हो गया ना सर, एक एक अरे चांस हो गया। चांस मत छोड़ो मेरे भाई, हाँ बोलो। वहां पे तुम्हारा ओके इंटरव्यू लेने वाला कोई नहीं है। ओके। हाँ, तुमको सिर्फ हाँ बोलना है और थोड़ी पढ़ाई करनी है। अरे 2 नाइट अगर तुम मतलब नाइट मार दोगे ना, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा यार। आई थॉट इट विल टेक टाइम, तो मैंने उसको तो देख बोला टाइम कि फिक टाइम कुछ नहीं है, 2 4 दिन में मेरा इंटरव्यू अरेंज करो बोलो, खत्म, मैं करता हूँ बोलो। इंटरव्यू तो देखे देखो भाई, बाद में बात का बाद में देख लिया जाएगा। ओके। ना बोलने का ही नहीं है अभी, ना बोलने का समय नहीं है, हम प्रेशर नहीं है अभी। ओके, ऐड करना है वीएम एजूर डायरेक्टरी, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये इसमें लास्ट का पार्ट है अपना आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, अगर आप चाहे तो मैं पहले ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं। ओके। नहीं अभी ऐसे फ्लो से जाते हैं, इनकेस हाँ अगर कोई अपॉर्चुनिटी आया हाँ तो डायरेक्टली क्वालिटी इन द वीकडेज। हाँ हाँ। हाँ। तो मैं तुमको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि तुमको तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। और बाद में हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो एजूर फंडामेंटल में नहीं आता, हम सबके लैब करके देखेंगे, जितनी पॉसिबल लैब है ना उतनी, 2 घंटे में। वीएम बनाएंगे, ऐप सर्विसेज बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, एकेस बना के दिखाता हूँ मैं तुमको। एजूर डायरेक्टरी बना के दिखाता हूँ उसमें यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर को ओनर डिस्ट्रीब्यूटर और रीडर एक्सेस कैसे देते हैं वो बताता हूँ। मतलब तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई पोर्टल पे ये सारी सर्विसेज रन कैसे करती है, और बैकएंड में जेसन फाइल क्या होता है, कहाँ देखते हैं। एक बार ये देख लिया ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है यार। और वही सेम वही वहां पे करना है। मतलब ये पोर्टल ऐसा है क्या, मतलब हम जो पोर्टल यूज कर रहे हैं अलग है, वहां पे प्रोडक्शन का अलग होगा? कुछ नहीं अलग होगा, सिर्फ सब्सक्रिप्शन अलग होगा। समझ लो, तुम्हारा फ्री है, वहां का पेड है, बस खत्म। बाकी काम वही करना है, और वही दिमाग में रखना है कंसेप्ट। वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, वही दिमाग है, वही कंसेप्ट, अलग कुछ नहीं। ट्रबल शूटिंग की स्टेप वही है, सेम है, कुछ अलग नहीं। अगर कोई टिकट आता है तो मैंने जैसे बोला है आपको, फिर से एक बार बोलूंगा, उसी फ्लो में आपको काम करना है, ओके। अलग कुछ नहीं है। पहले दिमाग से हटा दो, सिर्फ आपको करना है कि जो मैं बोल रहा हूं उतना तो कम से कम करो, बाकी का तो छोड़ो। ओके। हाँ। ओके, अभी ऐड करना है वर्चुअल मशीन, क्लिक कर दिया तुमने, क्रिएट करने को ले लिया। बाद में पहला स्टेप तुम सब्सक्रिप्शन, राइट। बाद में रिसोर्स ग्रुप का नेम देते हो, राइट, वीएम नेम देते हो। उसके बाद ओएस रीजन सेलेक्ट करते हो। उसके बाद तुम्हारा ओएस नेम होता है। उसके बाद ओएस की तुम्हारी जो साइज, क्या बोलते हैं, साइज का प्रोसेसर, मतलब वीएम साइज हो गया, करेक्ट। बाद में तुम यूजर नेम देते हो, उसके बाद तुम पासवर्ड देते हो, करेक्ट। उसके बाद तुम आरडीपी, आरडीपी एसएसएच हमने देखा था, एसएसएच दैट इज द पोर्ट एक्सेस करने के लिए, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 22, करेक्ट। तुम बाद में क्या करते हो, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी जो देना है वो देते हो, बस, और क्रिएट कर देते हो। सिंपल है ना, बेसिक है, डिस्क है, और उसमें क्या आता है कि बेसिक वाला एक पार्ट आता है, डिस्क वाला एक आता है, नेटवर्किंग एक आता है, मैनेजमेंट और टैग्स आता है, और रिव्यू एंड क्रिएट, खत्म। यही सब का प्रोसेस है। कौन से भी सर्विस बनाओ, सेम यही रहेगा, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा एज पर द सर्विस। ओके, ये मुंह जबानी याद रहना चाहिए तुमको। हाउ टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, विच कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द वर्चुअल मशीन, ये तुमको पूछेंगे। टाटा में तो टीसीएल में तो 100% पूछेंगे।
ओके, समझ में आ गया ना भाई? यस। हम्म, गणेश सर उसको इसमें ये अपना प्रोटेक्शन वाला ईडी ईडीपी और टीएलपी ये कॉन्सेप्ट बताएंगे सर? एडीपी पीएलपी है मतलब एडीपी इन द वो सेंस डेटा ये लॉस प्रोटेक्शन एंड अच्छा। नहीं नहीं वो नहीं रहता है इधर एंड अभी। ओके 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 वो सर ओके। नहीं नहीं वो कुछ वो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। नो बट व्हाट बेसिस यू आर ठीक है सेइंग सर दैट? ओके। मींस हाँ, आपको कोई ना करंट वो सिनेरियो में है ना इंट्यून क्या? अपना हाँ। आपको करंट सिनेरियो में जो आईटी ऑपरेशंस में जो चल रहा है ना, वो ओके। टिकट्स में ये भी है। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व हूँ। हम्म तुम अपना प्रॉपर डेटा लॉस। हाँ तो डेटा सर लॉस लेटेंसी करेक्ट। डेटा लॉस लेटेंसी ये जो है ना ये पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ योर ट्रबल शूटिंग। तो कैसा होता है फॉर एग्जांपल आपको टिकट कैसे आते हैं मैं अच्छा। बताता हूँ। टिकट आया तुम्हारा डेटा लॉस। डेटा लॉस का हम्म, मतलब क्या होता है तुम्हारे मैक्सिमम पैकेट लॉस हो रहे हैं हम्म, करेक्ट। ये पैकेट लॉस हो रहे और उनका एप्लीकेशन अच्छे से चल नहीं रहा मतलब स्लो हो गया राइट वाला सर। ओके। यस सर यस सर हाँ यस सर। तो आपके पास टिकट आ गया। आपके पास टिकट आने के बाद आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई वो बताओ मुझे। इंफॉर्मेशन क्या है सोर्स मैंने क्या है वीएम है हाँ हाँ सर हाँ सर। virtual machine that particular application is hosted on that particular VM correct हम्म। यस सर यस सर right ना। तो तुम फर्स्ट ट्रबल शूटिंग यस सर स्टेप यस सर। हाँ फर्स्ट ट्रबल शूटिंग स्टेप नीड टू द चेक वीएम करेक्ट। वीएम ओके। हाँ वीएम चेक करोगे। नेक्स्ट उसमें क्या करोगे कि इसके बाद में नेटवर्किंग पार्ट क्या आता है तुम्हारा एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी में ग्रुप हाँ। ये एप्लीकेशन पे जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है व्हाट काइंड ऑफ द ट्रैफिक टीसीपी एंड यूडीपी करेक्ट। दो टाइप के यस सर यस ट्रैफिक सर होते हैं एक टीसीपी यूडीपी। तो मुझे बताओ यहाँ पे तुमने कौन सा पोर्ट इनेबल किया है और कौन सा पोर्ट डिसेबल किया है चेक कर लो तुम्हारा एच टी टी पी ओके ओके। ओके। ये अगर अलाउ है तो नेक्स्ट ये तुमने वेरीफाई कर लिया ये वेरीफाई कर लिया। अभी तुम्हारा ये जाएगा तुम्हारा लैंड जोनिंग में मतलब कहाँ पे जाएगा एप्लीकेशन गेटवे गेटवे। अभी यस सर हाँ। एप्लीकेशन गेटवे किस पे काम करता है तुम्हारा लेयर 7 मतलब 4 पे भी करता है लेयर 7 पे भी काम करता है। हम्म। यहाँ पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये तुम्हारी ट्रैफिक है ये पोर्ट लेवल है पोर्ट लेवल या नेम लेवल मतलब डोमेन लेवल ओके। डोमेन लेवल ओके। हाँ फॉर एग्जांपल एक यूआरएल है url.com ये पर्टिकुलर यूआरएल है। तो इस यूआरएल ये एप्लीकेशन गेटवे ये यहाँ से तुम्हारा यूआरएल रूट कर रहा है राइट ये ट्रैफिक रूट कर रहा है ना। यस तो यहाँ पे तुम क्या यस चेक यस। करोगे इसका सर्टिफिकेट चेक करोगे। हम्म। सर्टिफिकेट हाँ एक्सपायर है या कैसा है एक बार चेक कर लो करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे भी तुमको एप्लीकेशन गेटवे में तुम्हारे कुछ ऑप्शन होते हैं दैट इज द लिसनर होता है ओके प्रोब्स होता है उसका ओके बैकएंड पूल होता है बैकएंड सेटिंग होती है वो चेक कर लो। ये सब अगर ओके है ओके। तो तुम जाओगे फिर फायरवॉल पे एजूर हाँ फायरवॉल। ये फायरवॉल। हाँ एजूर फायरवॉल में हम फिल्टर कर देते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलाउ है डिनाई है। और बाहर जाके यहाँ से बाहर जाके तुम्हारा ट्रैफिक तो ट्रैफिक कहाँ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समझ लो तुम्हारा एसडी वैन है हम्म। तो तुम तुम्हारे वीएम से ओके तू हमारा वीएम सोर्स है या डेस्टिनेशन वो पहले चेक करो। यहाँ पे तुम पहले पिंग करोगे करेक्ट टू डेस्टिनेशन यस पिंग में पिंग मिल रहा है लेकिन पैकेट मतलब 30% पैकेट लॉस लास्ट ओके। राइट। तुम वन बाय वन चेक राइट करते सर जाओ। राइट। हाँ तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा टीसीपी और यूडीपी का डंप निकालना पड़ेगा। तो इसमें तुमको पता चलेगा कि एंड टू एंड कौन से मतलब यहाँ पे होप्स मिलेंगे तुमको एसडी वैन के बीच में। यहां तक तुमने हम्म। चेक कर लिया तुम्हारा लोकल मतलब ये तुम्हारा ये लॉजिकल कलेक्टिविटी तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में तुमने चेक कर ली इसमें कुछ नहीं मिला।
फिर तुमको चेक करना पड़ेगा एसडी वैन में कहाँ इश्यू है। अगर यहाँ पे भी इश्यू नहीं मिल रहा तो कस्टमर को बोलना पड़ेगा यहाँ पे कस्टमर एंड का जो फायरवॉल है यहाँ पे कुछ इश्यू है क्या, अगर उनके कुछ एंड में कहीं पे फाइबर में कुछ इश्यू है क्या, वो चेक करने को बोलने पड़ेगा। ये दैट इज द स्टेप ऑफ ट्रबल शूटिंग। हम्म, हाँ सर, है सर। तो ये दैट नहीं ये सर, टिकट जैसा टिकट वैसा ट्रबल शूट, समझ रहे हो। got it. अभी अभी मैं इनिशियल स्टेज में हूँ सर, नहीं नहीं ये इसीलिए सिम मैंने एक कोर्स इन, ज्वाइन इन, किया था। इनिशियल स्टेज ही है, तो ये सेम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना फिर कैसे चेक करना है। यस सर, यस करेक्ट सर। ना। हाँ। तो करूंगे सर, करूंगे सर ये कल। ये फॉलो करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप जितनी टीम है उसको इन्वॉल्व करो, कॉल सेटअप करो और अपने अपने एंड का सब कुछ चेक करने को लगाओ। ऐसा नहीं कि आपके पास सब ठीक कुछ है। सर, ओके सर। आप तुम सिर्फ एजूर लेवल पे चेक कर सकते हो। बाकी कोई एप्लीकेशन है तो उनको उनके एंड का चेक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन टीम चेक करनी पड़ेगी। क्लाइंट एंड का क्लाइंट एंड को चेक करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, पैकेट लॉस, कनेक्टिविटी में इश्यू है कहाँ पे, वो सब चेक करना पड़ेगा। वो ट्रबल शूट करने के बाद ही पता ओके चलेगा। सर, हम्म। श्योर सर, श्योर। मैं द बेस्ट फॉलो करूंगी। ओके। मैं तो भी सीख रहा हूँ सर, अभी वो प्रैक्टिकली ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसा सीख रहा हूँ, इसीलिए। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट सर्विस हमने अभी कंटेनर की बात की थी, जैसे एजूर कंटेनर सर्विसेज। कंटेनर वीएम तो हो गया ना। अब है एजूर कंटेनर सर्विसेज। मुझे तो लग रहा है सिर्फ बाला और यूनुस दो ही है, बाकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे आज। सर हम लोग बी- बेंच पे है ना, इसीलिए सर। बाकी को बाकी को पेमेंट मिल रहा है क्या अभी? अरे यार। मैं साइली आपको मैडम, रामेश्वर, डोइजड, रजत, गणेश, दीपक आणि अमर जाधव हाय सर. हाय, आहेत का सगळे? गणेश हा आहे. जॉईन आहे, जॉईन आहे. तू आता आला का रे? 100 वेळेस नाव घेतल्यानंतर नाही नाही, मी होतो थोडं कामाला गेलता का? काम नाही. हा? डोळा लागला थोडा. डोळा लागला का? नाही 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 नाही. हे असं असते, मित्राजवळ करू नका रे ट्रेनिंग, तुम्ही कुठेतरी घाला 50-60 हजार, मग झोप लागत नाही. कसं आहे 1 लाख फीस दिली की बरोबर येते होत आहे ना युनुस. नाही मग नाही झोप उडून जाईल सर, झोप उडून जाते मग हा, रात्रंदिवस. ते फ्रीचं कसं नाही झालंय छोटा आता. ते छोटा रडायला लागला तिकडेच पळत गेलो. हो चला, ठीक है। कंटेनर ओके। तो कंटेनर क्या होता है, एक कंटेनर लॉजिकली, ओके, कंटेनर अगर डेफिनेशन बताया जाए, कंटेनर इज हेल्पिंग अस टू क्रिएटिंग आइसोलेट वर्क, ओके, लोड्स। हम जो लोड जिसमें स्टोर कर सकते हैं ऑन दी सेम फिजिकल मशीन्स, ओके, बट इट इज द सेम टाइम दिस वर्क लोड डू नॉट नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे तुम कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। तुम सेपरेट कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे ये वर्चुअलाइजेशन किया, ये हार्डवेयर है, और यहाँ पे तुम्हारा हाइपरवाइजर है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारा इंजन आएगा। इंजन क्या रहता है, डॉकर इंजन। डॉकर की खुद की इमेज होती है, राइट, इसकी खुद की इंजन होगी। ये मतलब पैस सर्विसेज में आता है, दैट इज द कंटेनर। सो वी हैव मींस वी हैव इन द Azure पोर्टल इनबिल्ट डॉकर इंजन, ओके। ऑन दैट पर्टिकुलर डॉकर इंजन, ये मतलब एक बोट की तरह है, और उसके बीच में तुम मल्टीपल कंटेनर बना सकते हो, मल्टीपल कंटेनर, और इस कंटेनर में तुम्हारी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज रन करा सकते हो। सो नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। In general, if we run two virtual machine, both need क्या लगता है OS, correct? To run the resources. To avoid such a requirement, need a container. अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वर्चुअल मशीन नहीं बनाना है तो आप कंटेनर बनाए, ओके। दैट इज द, एक तो तुम्हारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन वीएम में होस्ट कर सकते हो या कंटेनर पे होस्ट कर, इतना याद And they रखना। said that Linux is also not required. यस, लिनक्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड,
Without Linux, you cannot host the container. Docker image is only support to the Linux. Okay. याद रखना, जब लिनक्स तुम्हारा नॉलेज यहाँ पे रहेगा, ये जो है ना, ये डॉकर इंजन सपोर्ट करता है तुम्हारा लिनक्स के लिए ही। इसका इमेज ही लिनक्स का होता है, डॉकर का इमेज का। समझ रहे हो क्या? Okay. लिनक्स ऐसा, लिनक्स नहीं चाहिए, नहीं लिनक्स ही लगेगा, विंडोज को सपोर्ट नहीं करता है। टेस्टिंग, अभी टेस्टिंग चल रहा है उनका, अभी तक उन्होंने लिनक्स पे किया है काम। मैं मतलब स्टार्ट ही लिनक्स से किया है, अभी विंडोज पे काम करने वाले। अभी होता कैसा है कि डेवलपर क्या काम करता है, डेवलपर क्या करता है बोलो? डेवलपर क्या करता है? इमेज पुश करता है ना, हम्म, इमेज पुश करेगा। कहाँ करेगा? एक एजूर कंटेनर रजिस्ट्री रहेगी, ओके, एजूर कंटेनर रजिस्ट्री में पुश करेगा। ये तुम्हारा ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर, ओके। तुम्हारी जो डॉकर की इमेज है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आर्टिफैक्ट्स, ओके। और यूजर क्या करेगा? ये जो इमेज है उसको यूज करेगा, मतलब वो डाउनलोड भी कर सकता है और क्या कर सकता है? क्रिएट कंटेनर, कंटेनर। ये मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ओके। याद रखना कंटेनर का थ्योरेटिकल पार्ट। Container are the created to run the application at the user end, user services, okay. And container is the lightweight, okay। lightweight क्या होता है? lightweight मतलब एकदम easy होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्ड होता है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स ये वो बहुत सारी होती है, ओके। तो कंटेनर की इमेज लाइटवेट होती है, डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा जरूरी नहीं, इट विल बी ऑलवेज यूज्ड टू अंडरलाइन ऑन विच द क्रिएटेड, ओके। एंड कंटेनर डज नॉट रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना याद रखना। कंटेनर एज सर्विस नहीं है, Azure कंटेनर इंस्टेंस दैट पर्टिकुलर सर्विस इज द PaaS, ओके। PaaS ऑफरिंग दैट रन्स अ कंटेनर इन Azure विदाउट नीड्स द मैनेज अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, तुम सीधा सीधा कंटेनर किस पे बना सकते हो? डॉकर इंजन पे बना सकते हो। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल क्या है? क्लाउड में, एजूर क्लाउड में, ए के यस, राइट, एजूर कुबरनेट सर्विसेज, ओके, इट्स अ मैनेज्ड सर्विस। कुबरनेटिस क्या होता है? इट्स अ ओपन सोर्स, ओनली कुबरनेटिस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कुबरनेटिस, K8S, ओके। कुबरनेटिस क्यों होता है? कुबरनेटिस क्या होता है? इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मिलता है, विच आल्सो कॉल्ड एज ऑर्केस्ट्रेशन सर्विसेज, ओके। इट हेल्प्स टू active and integrated multiple container with least amount of efforts, okay। कुबरनेटिस ओपन सोर्स भी मिलता है, तुम डिप्लॉय करो, डिप्लॉय करने के बाद वहां पे तुम कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन इन एजूर, एजूर में क्या होता है? इट कमिंग एज अ एकेस, एजूर कुबरनेट सर्विसेज दैट इज द मैनेज्ड to need to create multiple virtual machine and top of the VM need to the create multiple containers। Kubernetes services free, Kubernetes सर्विसेज कैसी है? फ्री है, फ्री। कुबरनेट नॉट ए केसा, कुबरनेट ओपन सोर्स है, ये फ्री है, क्लियर। एग्जाम्पल है कंटेनर का, तो ये एकेएस भी मैं बना के दिखाऊंगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे? वर्चुअल मशीन की जो सीरीज है, जनरली कैसा होता है कि वर्चुअल मशीन का साइज डिपेंड, हम क्या लेते हैं कि कौन से पर्पस के लिए तुम्हारी वर्चुअल मशीन बन रही है, राइट। अगर आपको जनरल पर्पस के लिए बनाना है, जनरल पर्पस के लिए, ओके, तो तुम डी या बी यूज कर सकते हो, ओके। दैट इज द जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के लिए, ओके। एंट्री लेवल अगर होगा टेस्ट सर्वर, टेस्ट सर्वर बनाना है तो तुम ए साइज ले सकते हो, मतलब ए सीरीज, ओके।
आपने देखा होगा वहां पे बी डी ई एफ ऐसा सीरीज थी, राइट? और आपको इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन बिल्ड करना है, नेक्स्ट जनरेशन और जनरल पर्पस दोनों भी आता है इसमें, तो DV2 आता है। और इसके बाद कंप्यूट ऑप्टिमाइज वीएम, अगर बैच प्रोसेसिंग के लिए या वेब सर्वर बनाना है तुम्हारे वीएम पे, तो तुम F सीरीज का ले सकते हो। ये पता होना चाहिए एक नेटवर्क मतलब क्लाउड इंजीनियर को, क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसी आती है वैसा आपको कस्टमर को सजेस्ट करना आना चाहिए। अगर उन्होंने बोला भाई मेरे को एसक्यूएल के लिए चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? भाई तुम मेमोरी और स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट वाला वीएम ले लो, दैट इज द G सीरीज। कॉस्टली लगेगा लेकिन तुम्हारा जो एसक्यूएल डेटाबेस है वो अच्छी तरह से चलेगा। अगर हाई परफॉर्मेंस किसी को चाहिए, तो तुम HCL, अलग अलग टाइप के, ओके। तो इसका लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं। और जब हम वीएम बनाते हैं वहां पे भी आपको पता चल जाता है। अब हमने अवेलेबिलिटी जोन, पता है आपको अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? हेल्प टू मेंटेन द 99.95% इन केस ऑफ द डिजास्टर रिकवरी जोन के लिए, ओके। और प्राइसिंग कैलकुलेटर, ये हम सीखेंगे, कोई इश्यू नहीं है, एक जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्राइसिंग कैलकुलेटर, प्राइसिंग कैलकुलेटर क्या होता है कि आपको कॉस्ट पता होना चाहिए एजूर की क्या है, ओके। इसमें TCO करके होता है, एक एजूर प्राइस होता है, एजूर प्राइस, प्राइसिंग कैलकुलेटर। ये होता है कि तुम्हारे वीएम की प्राइस, अगर वीएम तुम किसी को हैंड ओवर करते हो तो वीएम का प्राइस कितना है आपको पता चल जाता है एकदम, आप क्रिएट करते हो तो, ओके। लेकिन आपको अगर ऑन प्रीमाइसिस से अगर वीएम एजूर पे अगर 10 वीएम माइग्रेट करने हैं, ये बोल रहा है कि भाई मेरे को अभी ऑन प्रीमाइसिस नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे पूरी की पूरी सर्विस लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेट करके दो और मुझे क्लाउड से सर्विसेज चाहिए, तो तो वो क्या बोला, मेरे को प्राइस चाहिए। तो TCO, ये क्या होता है कि क्या बोलते हैं इसको, ये कैलकुलेटर होता है, ओके। ये कैलकुलेटर होता है ओनर का। तो हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेटर में जाके वीएम के 10 वीएम की कैलकुलेशन करते हैं ऑन प्रीमाइसिस, और उनका डिफरेंस निकालते हैं, और वो डिफरेंस हम कस्टमर को देते हैं, और वो कस्टमर देखने के बाद बोलता है भाई कि मेरा सर्विस माइग्रेट कर, राइट। उसके बाद होता है एजूर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या होता है कि फॉर द डिप्लॉइंग एजूर सब्सक्रिप्शन के मार्केट प्लेस में तुमको अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दूसरा कंसेप्ट है एजूर वर्चुअल नेटवर्क, इट इज अ होस्ट अ वर्चुअल मशीन इन एजूर, ओके। एजूर वर्चुअल नेटवर्क में तुमको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, इट विल बी आइसोलेटेड नेटवर्क होता है वो, दैट पर्टिकुलर तुम एक रिसोर्स ग्रुप के लिए बना सकते हो, एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो। वो क्या होता है, आइसोलेट होता है, लॉजिकली आइसोलेट होता है, ओके। तो नेक्स्ट अभी एजूर नेटवर्किंग का जो पार्ट है, अभी हमने कोर सर्विसेज तो पूरी देख ली, ओके। तो हम एजूर नेटवर्क और बाकी की जो सर्विसेज है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, सो चलेगा? डेफिनेटली सर, तो ये अपना अजोर कंटेनर सर्विस, जैसे आपने देखा कि अजोर वर्चुअल मशीन, हम्म दैट डू